Hello and welcome to National Institute of Share Market Training. In this session, we'll be learning about how Japanese candlesticks are made. So let us start with a very simple example of a fruit market. You are in a fruit market and you have a stopwatch of 10 minutes. Your objective is very simple. आपको क्या करना है, आपको ये 10 मिनट में जितने भी ट्रेड होंगे फ्रूट मार्केट में वो आपको रिकॉर्ड करते चलना है. सो यू स्टार्टेड योर स्टॉप वॉच और आपकी स्टॉप वॉच के हिसाब से जो पहला ट्रेड हुआ है वो हुआ है ₹100 का एंड टाइम था उस समय 50 सेकेंड. सिमिलरली जितने भी ट्रेड हुए हैं 10 मिनट्स में वो आपने सब रिकॉर्ड किए एंड लास्ट जो ट्रेड हुआ है आपकी स्टॉप वॉच के हिसाब से वो हुआ है 102 पे. सो 9 मिनट 50 सेकेंड पे वो ट्रेड हो गया और आपने वो ट्रेड को रिकॉर्ड कर लिया. अभी भी मार्केट में ट्रेड हो ही रहे हैं बट बिकॉज आपकी स्टॉप वॉच में समय खत्म हो गया है इसीलिए आपने अभी स्टॉप वॉच को खत्म कर दिया और डेटा को रिकॉर्ड करना छोड़ दिया. तो ये जो आपने अभी टेबल में जो डेटा बनाया है इसको बोलेंगे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सीरीज. नाउ टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सीरीज से एक बेहतर तरीका है टू सी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन चार्ट. सो हमारे केस में ये प्राइस और टाइम एक्सेस है एक्स एंड वाई एक्सेस और इस पर हम ये डेटा को रिकॉर्ड कर देंगे. सो एक सिंपल हम लोग एक लाइन चार्ट बना सकते हैं. नाउ द एडवांटेज ऑफ लाइन चार्ट ओवर टैबुलर फॉर्मेट इज कि visually line chart is very easy to analyze as compared to a simple table format of data. That is the only reason why we see line charts. Now another way to see this data is in the form of a Japanese candlestick. जैसे हमने tabular data को line chart में convert किया, similarly हम लोग ये tabular data या फिर ये line chart data को एक Japanese candlestick के रूप में भी देख सकते हैं. Now to make a Japanese candlestick, what we need is we need the first traded price and the last traded value. ये दो वैल्यू हमारे केस में 100 and 102 है. हम इन दो वैल्यू को देखेंगे कि ये इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. अभी हमारे केस में द डिफरेंस इज पॉजिटिव. हेंस वी विल क्रिएट अ रेक्टेंगुलर बॉडी जिसका कलर होगा ग्रीन. अभी ये क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव था 100-102 का डिफरेंस पॉजिटिव है इसलिए कलर ऑफ द बॉडी इज ग्रीन. मान लीजिए अगर हमारा अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता 99 सो डिफरेंस अभी हमारा नेगेटिव है. हेंस द कलर ऑफ द बॉडी वुड बी रेड. कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, अभी हमारे लिए जो डिफरेंस था दैट वाज पॉजिटिव ₹2 का. सो दिस ₹2 का डिफरेंस इज शोन बाय अ ग्रीन बॉडी, अ ग्रीन रेक्टेंगल. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू जॉइन द हाईएस्ट हाई विद द बॉडी. सो हाईएस्ट हाई हमारा था 105 जिसको हमने ज्वाइन किया 102 के साथ which is the upper part of the body. Similarly lowest low को हम मार्क करेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे बॉडी के लोअर पार्ट के साथ. So this is our complete Japanese candlestick. It will constitute a body, upper shadow and the lower shadow. Now there are some very important key learning points related to Japanese candlesticks. Japanese candlesticks represents price fluctuation or volatility in a given time frame. ये जितना भी volatility होता है स्टॉक का वो Japanese candlestick में दिख जाता है. So that is helpful to analyze the stock. Absolute change is represented by a body and the color of the body will be green if the change is positive. Similarly, if the change is negative then the color of the body will be red. Fluctuations over and above absolute change are represented by shadows, the upper shadow and the lower shadow. And last but the most important point, we have to decide at the end of the time frame, meaning हमें Japanese candlestick को पूरे बनने देना चाहिए. For example, if you are a long term investor and you are using a 1 week candle, then आपका जो decision day and time रहेगा वो रहेगा Friday 3:15 बजे. Similarly, if you are working on a 1 day candle, then you will be deciding on 3:15. In this session, we will be covering a Japanese candlestick named as Marubozu. But before we start, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि Japanese candlesticks को इतना importance दिया क्यों जाता है. So the answer to this query is कि Japanese candlesticks reflects the nature of buyer and seller. बायर और सेलर के बीच में एक नेचर होता है कि कौन कमांडिंग पोजीशन पे है. ये हमें जापानीज कैंडलस्टिक में दिख जाता है. दैट इज द रीजन व्हाई जापानीज कैंडलस्टिक्स बिकम सो इम्पॉर्टेंट.
So let us see the first candle named as bullish Marubozu. So ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, this is known as Marubozu. ये एक वन डे का कैंडल है, that is from 9:15 AM to 3:30 PM. इस कैंडल में कोई ज़्यादा शैडोज नहीं होती, ना अपर शैडो ना लोअर शैडो, और अगर इन केस थोड़ी बहुत अपर एंड लोअर शैडो होती भी है तो ये इनसिग्निफिकेंट होती है, बिकॉज वेन एवर द बॉडी इज लार्ज वी हैव टू गिव एम्फेसिस टू द बॉडी. सो अगर हम इस मैरुबोजू का एक लाइन चार्ट बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का लाइन चार्ट हम बना सकते हैं. इफ यू सी, द फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस वाज 100 एंड द लास्ट ट्रेडेड प्राइस वाज 110. नाउ ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं वो ट्रेजेक्ट्री बनने के लिए फॉर द एंटायर डे. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि ये जो कैंडल है ये हमें स्टॉक प्राइस मूवमेंट की उस दिन की ट्रेजेक्ट्री के बारे में कोई भी आइडिया देगा नहीं, बिकॉज ये कैंडल में शैडोज नहीं होती है, और जो बॉडी है, जो इस कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ बॉडी से ही होता है, वो एब्सोल्यूट चेंज रिफ्लेक्ट करता है. तो ये जो तीनों वेरिएशन हम देख रहे हैं इसमें एब्सोल्यूट चेंज फ्रॉम 100 to 110 है. सो इसीलिए ट्रेजेक्ट्री कैसी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो बुलिश मैरुबोजू को देख के हम एटलीस्ट इतना बोल सकते हैं कि बायर्स हैव एक्सेप्टेड द प्राइस ऑफर्ड बाय द सेलर्स फॉर द एंटायर डे. इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि बायर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो ब्रॉडली उन्होंने जो भी उनको प्राइस ऑफर किया गया ड्यूरिंग द एंटायर डे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो प्राइस एक्सेप्ट किया गया, एंड हेंस ये एक यूनिडायरेक्शनल प्राइस मूवमेंट दिखी फ्रॉम 100 to 110. सो सोचने की बात है कि ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से. तो यूजुअली ये कॉन्फिडेंस ट्रिगर होता है एक पॉजिटिव न्यूज़ से. पॉजिटिव न्यूज़ बहुत तरीके की हो सकती है. फॉर एग्जांपल, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे आ गए, या कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिल गया, या एक ऐसी पॉलिसी चेंज हुई है जो कंपनी को बेनिफिट करेगी फ्यूचर में. हेंस बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड टू द बिजनेस, भविष्य में इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है ये ऊपर जा सकता है. दैट इज द रीजन वाई the buyer becomes eager to buy the stock at any given price which is offered by the seller. और ये जो eagerness among buyers है या confidence among buyers है, ये एक positive momentum create कर देता है, जिसके वजह से we can conclude that there will be a continuation of the trend on the upward trajectory. This is the reason why कि इस कैंडल को एक strong bullish signal माना जाता है. That is कि इस कैंडल के आने के बाद देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को कंटिन्यू करेगा. नाउ जस्ट ऑपोजिट ऑफ बुलिश मैरुबोजू इज बेरिश मैरुबोजू. फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे कि जो बॉडी का कलर है दैट विल बी रेड. इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट चेंज हुआ है वो टाइम फ्रेम में, या हमारे एग्जाम्पल में, बिकॉज ये एक वन डे का कैंडल हमने रेफरेंस के लिए लिया है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो एब्सोल्यूट चेंज है वो कंप्लीटली नेगेटिव है, दैट इज फ्रॉम 110 to 100. So this candle indicates confidence among sellers. और जैसा हमने पहले देखा, इस केस में भी the trajectory of the fall is irrelevant. तो ये सारे alternatives हो सकते हैं फॉल के लिए, बट एक्चुअल में ये ज़्यादा अभी relevant नहीं है. relevant क्या है? relevant एक ही चीज़ है, that is the absolute fall, जो इस केस में 110 से 100 है, बिकॉज मैरुबोजू में शैडोज नहीं रहती. सो जैसे बुलिश मैरुबोजू कॉन्फिडेंस अमंग बायर्स दिखाता है, वैसे ही बेरिश मैरुबोजू कॉन्फिडेंस अमंग सेलर्स रिफ्लेक्ट करता है. सो इस केस में इट इज इंडीड द सेलर हु हैव एक्सेप्टेड द प्राइस ऑफर्ड बाय द बायर्स फॉर द एंटायर डे. सो ये जो कॉन्फिडेंस अमंग सेलर्स है ये यूजुअली ट्रिगर होता है एक नेगेटिव न्यूज से. नेगेटिव न्यूज बहुत सारी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, पुअर प्रॉफिट्स बाय द कंपनी, इंटरनल इश्यूज विद इन द कंपनी, और देयर कुड बी सम एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये सारी चीज़ें कंपनी के प्रॉफिट को या फिर भविष्य में कम कर सकती हैं, या फिर इन्होंने अभी इम्पैक्ट किया हुआ कंपनी के प्रॉफिट्स को. सो दिस बिकम्स द रीजन कि सेलर्स आज जो भी प्राइस उनको ऑफर किया जा रहा है बायर्स के थ्रू, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग कि ये स्टॉक का जो प्राइस है भविष्य में ये नीचे जा सकता है. सो ये जो ईगरनेस अमंग सेलर्स हैं सेल करने के लिए, या कॉन्फिडेंस अमंग सेलर्स है अपना स्टॉक को सेल करने के लिए, ये एक नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट करता है, जिसके वजह से स्टॉक का जो प्राइस है फ्यूचर में वो नेगेटिव दिशा में जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड इन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी.
जैसे बुलिश मैराबूजो के आने के बाद देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक का प्राइस भविष्य में ऊपर जाएगा, वैसे ही बेरिश मैराबूजो के आने के बाद देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि भविष्य में स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। हेंस दिस टाइप ऑफ अ कैंडल इज कंसिडर्ड एज अ बेरिश सिग्नल। इस सेशन में वी विल कवर शूटिंग स्टार, जो कि एक बेरिश रिवर्सल कैंडल है। शूटिंग स्टार में एक छोटी बॉडी और एक लार्ज अपर शैडो होती है। बुलिश मैराबूजो एंड शूटिंग स्टार में डिफरेंस ये है कि बुलिश मैराबूजो में ड्यूरिंग द एंटायर टाइम फ्रेम प्राइस अपने हायर लेवल्स पे सस्टेन्ड रहता है, वेराज इन शूटिंग स्टार प्राइस कुछ देर तक तो ऊपर के लेवल्स पे रहता है, बट बाय द एंड ऑफ द टाइम फ्रेम वो नीचे आ जाता है टुवर्ड्स द लोअर लेवल्स। सो इफ वी नोटिस, कभी ना कभी ड्यूरिंग इट्स एंटायर टाइम फ्रेम एक शूटिंग स्टार भी बुलिश मैराबूजो जैसा दिखता है, बट लेटर इन द टाइम फ्रेम सेलिंग आ जाती है, जिसके वजह से प्राइस नीचे आ जाता है। नाउ दिस सेलिंग कुड बी ट्रिगर्ड बाय प्रॉफिट बुकिंग और एनी अदर रीजन। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द प्राइस वाज नॉट सस्टेन्ड एट द हायर लेवल्स। नाउ अगर हम शूटिंग स्टार की लाइन चार्ट को एक्सटेंड करते हैं तो वी कैन सी दैट इट शोज डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। इसका मतलब ये है कि अब आने वाले कुछ कैंडल्स नेगेटिव आ सकते हैं। हेंस शूटिंग स्टार इज कंसिडर्ड एज अ बेरिश रिवर्सल कैंडल। नाउ लेट अस सी अ वेरी स्मॉल वेरिएशन कि अगर ग्रीन कैंडल के बदले रेड कलर्ड बॉडी होती तो क्या होता। सो इफ वी मेक द लाइन चार्ट ऑफ बोथ कैंडल्स, वी कैन सी दैट द लाइन चार्ट ऑफ बोथ दीज कैंडल्स इंडिकेट्स डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। Hence, whenever the shadow is large as compared to the body, the color of the body becomes insignificant. Hence, ये दोनों candles shooting star family के हैं and both indicates bearish reversal, that is downtrend. Now let us see hammer, which is just a completely opposite candle to shooting star. Main difference shooting star और hammer में ये है कि shooting star में price higher levels पे sustain नहीं रहता, whereas in hammer प्राइस लोअर लेवल्स पे सस्टेन नहीं रहता। हेंस हैमर इज कंसिडर्ड एज अ बुलिश रिवर्सल सिग्नल। In this session, we'll cover spinning top and doji, which indicates confusion. Spinning top में एक छोटी body रहती है with a small upper as well as lower shadow. The color of the body could be red or green. Now, because spinning top में price upside and downside दोनों direction में move होता है, hence spinning top indicates confusion among buyers and sellers. And usually ये state of confusion support and resistance level पे बनती है. That is along with hammer at support or shooting star at resistance. Another scenario in which spinning top बनता है वो है uncertain events which can impact the current or future profits of the company, जैसे कि general and state elections or any regulatory changes which can impact the business of the company. And coming to doji, doji is very similar to spinning top. The only difference is कि doji में upper and lower shadows are very large as compared to spinning top. और जैसे spinning top confusion reflect करता है, वैसे ही doji भी confusion reflect करता है. Only difference is that the state of confusion is very high in case of doji. So larger the shadow, higher the confusion. So let us discuss why it is so important to wait till the candle is completely formed. So we are taking the same example. जैसे जैसे नया डेटा रिकॉर्ड होगा वैसे वैसे लाइन चार्ट भी बनते जाएगा एंड अकॉर्डिंगली कैंडल भी फॉर्म होते जाएगा। सो जैसे ही फर्स्ट डेटा रिकॉर्ड हुआ, लाइन चार्ट पे हमने एक पॉइंट मार्क किया एट वैल्यू ऑफ 100। एट द सेम टाइम हमने जापानीज कैंडल के लिए भी एक डैश मार्क किया है एट द वैल्यू ऑफ 100। नाउ जैसे ही सेकेंड डेटा रिकॉर्ड हुआ है, वी हैव मार्क्ड 103 ऑन द प्राइस वर्सेस टाइम चार्ट एंड वी हैव जॉइंड 103 विथ 100 to make a smooth line.
नाउ इफ वी सी द लाइन चार्ट फ्रॉम 100 to 103 और इस लाइन चार्ट का अगर हमें जापानीज कैंडलस्टिक बनाना है, सो वी हैव टू कंसिडर 100 एज द फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस एंड 103 एज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, बिकॉज अभी फिलहाल के लिए इतना ही समय है हमारे पास, विच इज 1 minute 45 सेकेंड, एंड इतना ही डेटा अवेलेबल है. सो जापानीज कैंडलस्टिक जो बनेगा, it would be an absolute change from 100 to 103, which will be shown by a green body, and it won't be having any shadows. Now with the new entry of 105, हमारा लाइन चार्ट भी मॉडिफाई होगा एंड अकॉर्डिंगली हमारा जापानीज कैंडलस्टिक भी मॉडिफाई होगा. सो इस स्टेज पे अगर हम लोग कैंडल को एनालाइज करें तो इट लुक्स लाइक अ बुलिश मैराबूजो, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल. तो अगर हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं तो दिस डिसीजन कैन गो रॉन्ग, बिकॉज अभी टाइम फ्रेम पूरा खत्म नहीं हुआ है. सो आइडियली इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वी शुड वेट फॉर द टाइम फ्रेम टू एंड. नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट विद द न्यू एंट्री ऑफ 104. सो लाइन चार्ट को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल एक स्टेप है, वी हैव टू जस्ट जॉइन 104 विद 105. बट विद जापानीज कैंडलस्टिक्स, now the absolute change is from 100 to 104. Hence, the green colored body will now be reflecting the price change from 100 to 104 only. And 105 shall be considered as the highest price at which the fruit was traded. And the difference between the highest traded value, which is 105, and the latest traded value, which is 104, it will be connected with the help of a line which will form the upper shadow of the candle. लाइकवाइज एक न्यू एंट्री आने पे लाइन चार्ट भी मॉडिफाई होगा एंड अकॉर्डिंगली जापानीज कैंडलस्टिक भी मॉडिफाई होगा. नाउ विद द न्यू एंट्री ऑफ 99, हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज है, विच इज द डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ 100 टू द लास्ट ट्रेडेड प्राइस विच इज 99, ये जो डिफरेंस है वो अभी नेगेटिव हो चुका है. और इस नेगेटिव एब्सोल्यूट चेंज को दिखाने के लिए जो बॉडी बनेगी वो बनेगी फ्रॉम 100 टू 99 एंड द कलर ऑफ द बॉडी विल बी रेड. सो हियर कम्स आवर की लर्निंग पॉइंट. जो कैंडल हमें अभी थोड़ी देर पहले बुलिश मैराबूजो जैसा दिख रहा था, विच इज नथिंग बट अ बुलिश सिग्नल, वही कैंडल अभी थोड़ी देर के बाद अभी हमें एक शूटिंग स्टार की तरह दिख रहा है, विच इज अ बेरिश रिवर्सल सिग्नल. सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी से दैट वी शुड वेट फॉर द कैंडल टू बी कंप्लीटली फॉर्म्ड. नाउ कंटिन्यूइंग विद द एग्जाम्पल, जैसे एक नया डेटा रिकॉर्ड होगा, लाइन चार्ट भी मॉडिफाई होगी एंड अकॉर्डिंगली जापानीज कैंडलस्टिक भी मॉडिफाई होगा. Now with the new entry of 98, हमारा absolute difference हो जाता है 2 रुपए का नेगेटिव, which will be shown by a red colored body from 100 to 98, and 95 becomes our lowest traded price, which will be connected from the lower part of the body, which is 98, with the help of the shadow or a line. And finally हमारे पास हमारा लास्ट डेटा आ जाता है, which is 102. So accordingly हमारा लाइन चार्ट भी मॉडिफाई होता है एंड हम जापानीज कैंडलस्टिक को भी मॉडिफाई कर देते हैं. नाउ इस पॉइंट के बाद हमारी स्टॉप वॉच में जो समय था वो खत्म हो चुका है. दैट इज द रीजन वाई अब जापानीज कैंडलस्टिक और मॉडिफाई नहीं होगा और वो यहीं पे फ्रीज हो जाएगा, बिकॉज हमारा डेटा अभी आना बंद हो चुका है. सो आइडियली अब जाके हमें कैंडल को एनालाइज करना चाहिए. सो इस कैंडल को देख के ऐसा लगता है कि ये कंफ्यूजन वाला कैंडल है, बिकॉज यहाँ पे अपर शैडो भी है, लोअर शैडो भी है और एक छोटा सा बॉडी भी है. सो इस कैंडल के बाद हमें एक या दो कैंडल रुकना चाहिए to get a clear decision. But if you recall, the same candle थोड़ी देर पहले एक bullish मैराबूजो जैसे दिख रहा था, which is a bullish signal, और कुछ देर के बाद ये एक शूटिंग स्टार की तरह दिख रहा था, which is a bearish reversal signal. That is the reason why ideally we should wait for the complete candle to be formed. In this session, we will learn how to merge or add Japanese candlesticks. So merging of Japanese candlestick means that we are actually adding up two candles of smaller time frames to make a new candle of a bigger time frame. So अगर हम 5 one day candles को merge करें तो we will get a 1 week candle. Similarly, 4 15-minute candles can be merged to make 1 hour candle. इस कॉम्बिनेशन में a red candle is followed by a large green candle and it seems like कि second candle ने first candle को engulf कर दिया, hence the name bullish engulfing.
तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए we will take the opening of the first candle, closing of the second candle and the highest high and the lowest low among both the two candles. So as we can see, ये जो 4 पॉइंट से जो रिजल्टेंट कैंडल बना है that is looking like a hammer. That is the reason why bullish engulfing is also considered as a bullish reversal signal. Bearish engulfing pattern is opposite to bullish engulfing pattern. यहाँ first candle is green followed by a large red candle. और इन दोनों कैंडल्स को मर्ज करने के लिए हम सेम 4 पॉइंट्स मार्क करेंगे. एंड एज वी सी, नया कैंडल शूटिंग स्टार जैसा बनेगा. Hence, bearish engulfing is a bearish reversal signal. Now जैसे डबल कैंडल पैटर्न होते हैं, वैसे ही ट्रिपल कैंडल पैटर्न भी होते हैं. Let's see a triple candle pattern which is morning star. Here a red candle is followed by a gap down candle which is again followed by a gap up green candle. यहाँ पे भी हम पहले कैंडल का ओपन और लास्ट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट लेंगे. और इसी वजह से जो बीच का कैंडल है उसका कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता. और लास्टली हाईएस्ट हाई एंड द लोएस्ट लो हम जिस भी कैंडल का रहेगा उसका लेंगे. सो ये जो 4 पॉइंट्स का रिजल्टेंट कैंडल बना है वो हैमर जैसा है. हेंस मॉर्निंग स्टार इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल. Like we did before, we can mark the 4 data points and make a resultant candle which looks like a shooting star, which is a bearish reversal candle. Hence, evening star is also considered as a strong bearish reversal signal. So, ऐसे ही हम सारे कैंडल पैटर्न्स को मर्ज कर सकते हैं. In fact, there are over 30 different types of candle patterns. But इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉज ये मर्ज होने के बाद जो रिजल्टेंट कैंडल बनता है वो इवेंचुअली ईदर हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप और मैराबूजो, इन 4 कैंडल फॉर्म्स में से ही एक रहेगा. सो मर्जिंग का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम चार्ट एनालिसिस के दौरान यूज करेंगे.